प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लेकिन थ्योरी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए क्या रिलेशन होगा जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स में, वो डिस्कस किए हुए हैं। फिर पहले इस क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial. Means if we put 3 at the place of x, then overall value of this polynomial becomes 0. Means P3, we have to find P3, and P3 is 3 to the power 3 minus 5, 3 square minus 11 into 3 minus 3. 3 into 27 minus 9 minus 33 minus 3 is 81, 45, 36, and 81 minus 81 equal to 0. Means P3 implies 0, means 3 is the zero of polynomials, given polynomial. Means 3 is the zero of polynomial, given polynomial. Similarly, we can verify -1 and -1/3. P -1, 3 into -1 to the power 3, 5 into -1 square, 11 into -1 minus 3 -1 5 1 11 minus 3 minus 3 minus 5 8 and 11 minus 3 8 minus 3 minus 5 or 11 minus 3 8 minus 8 plus 8 equal to 0. P -1/3, 3 into -1/3, 5 -1/3 square, 11 into -1/3 minus 3. 3 तो क्यूब है ये, तो 9 हो जाएगा -1/9 minus 5/9 minus plus 11/3 minus 3 minus 5 and minus 1 minus 6/9 and plus 11 minus 9/3 minus 2/3 plus 2/3. Hence 3 minus 1 and minus 1/3 are the zeros of given polynomial. अब verify the relationship between zeros and its coefficients. तो zeros and coefficients का रिलेशन पहले बता रखे हैं, ड्राइव भी कर रखे हैं, आप उस वीडियो को देखें, पार्ट नंबर 2 या 3 होगा, प्लेलिस्ट में जाएं और मिल जाएगा। पॉलिनोमियल है px 3x³ minus 5x square 11x minus 3, 3x³ 5x square 11x minus 11x and minus 3 polynomial, where a is 3, b is -5, c -11 and d -3. कहाँ से ABC लिखते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ plus bx² plus ch plus d। वहां से ABCD लिखते हैं कंपेयर करके।
तो अब अल्फा प्लस बीटा, लेट there are 3 0, 3 minus 1 by 3. Say one is alpha, another is beta, and rest 1 by 3 is gamma. Now alpha plus beta plus gamma is minus b by a. Minus b by a. Now alpha plus beta, alpha 3, beta minus 1, and gamma minus 1 by 3. Gamma minus 1 by 3. ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी बाई ए के, और माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए लास्ट में चेक कर लेंगे कितना होता है, पहले इसका सम तो करें। 2 minus 1 by 3, 6 minus 1 5 by 3, and minus b by a, minus b by a minus b by a, minus plus means this is minus b by a, and alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. ये वेरीफाई हो गया, ये दोनों इक्वल है, माइनस प्लस 5 by 3, इसी तरह से ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा and gamma alpha taken 2 at a time is c by a. So now alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta, gamma alpha is alpha 3, beta minus 1, beta minus 1, gamma minus 1 by 3 plus gamma minus 1 by 3, alpha 3 is minus 3 plus 1 by 3 and minus 1, minus 4 plus 1 by 3, minus 12 plus 1 minus 11 by 3, and c by a is c by a minus 11, means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to c by a equals to minus 11 by 3. ये हो गया वेरीफाइड, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 minus 1 by 3, 1 and alpha plus beta plus gamma is minus d by a. Now minus d by a is minus 3 by 3 is 1, means alpha beta gamma is 1 and equals to minus d by a, verified। तो इस तरह से आप वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find a cubic polynomial with the sum of the products of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros 2 minus 7 minus 14 respectively। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा गामा अगर उसका जीरोज है तो क्या रिलेशन हो, किस तरह का पॉलिनोमियल होगा। तो इफ अल्फा बीटा and gamma are 3 zeros of cubic polynomial, then px is k into x cube minus alpha plus beta plus gamma, x minus alpha into x minus beta into x minus gamma का प्रोडक्ट करके बताए हुए हैं कि क्या फॉर्मेट आता है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा x क्यूब। तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा
और ये x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा का प्रोडक्ट करके बताए हुए हैं। वीडियो इसका देखना है, पहले जहाँ रिलेशन बताए हैं पीछे का वीडियो आप देखें। अब इसमें अल्फा बीटा प्लस इसमें क्या क्या दिया है ये देखना है। कहता सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो टेकन एट a टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज गिवन। तो पहले सम दिया, सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज गिवन एज 2। फिर कहता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज टू टेकन टू एट टाइम, दो करके प्रोडक्ट करके सम करना मींस अल्फा बीटा बीटा गामा तो गामा अल्फा, यही तीन कॉम्बिनेशन बनेगा और ये तीनों का सम यहाँ पे दिया -7 एंड फिर दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, तो तीन ही है, तीनों का प्रोडक्ट -14। ये तीनों गिवन है, इस तीनों को क्या करना है पुट कर देना है, इसमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देन पॉलिनोमियल बिकम px k into x cube minus 2x square minus 7x माइनस माइनस प्लस 14, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फाइंड द जीरो द पॉलिनोमियल एट x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। मींस एक अल्फा है दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, मतलब बीटा की जगह क्या आ जाएगा -, और तीसरा जीरो मीन्स बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा लिख देते हैं एंड गामा अल्फा एंड माइनस अल्फा, मतलब बीटा जो है वो किसके इक्वल है माइनस अल्फा के इक्वल है। ये दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है दूसरा जीरो जो है। अब जानते हैं वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा दैट x इज गिवन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। A equals to 1, B equals to -5, C -16 and D 80। Alpha plus beta plus gamma minus B by alpha plus beta, alpha minus alpha plus gamma minus -5 by 1 means gamma equals to 5। तो गामा मिल गया, दो जीरो जोड़ चाहिए तो दो रिलेशन भी बचे हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो आसान सा रिलेशन कौन सा यूज कर सकते हैं हम, तीनों का प्रोडक्ट कर दे अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई एन, गामा इज 5 एंड बीटा इज माइनस अल्फा, गामा 5 एंड माइनस डी 80 एंड ए 1, माइनस माइनस कैंसिल अल्फा स्क्वायर एंड 16 अल्फा प्लस -4 मीन्स दो केस हो रहा है। मीन्स इफ अल्फा इज 4 देन बीटा इक्वल्स टू -4 एंड गामा इक्वल्स टू 5। इफ अल्फा इक्वल्स टू -4 देन बीटा इक्वल्स टू 4 एंड गामा इक्वल्स टू 5 मीन्स 4 -4 and 5 are the zeros of the given function, that is 4 -4 and 5 are the zeros of given polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक जीरो जब तक पॉलिनोमियल x इक्वल टू x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b a plus b find a and b। a minus b a plus b 18 है, 18 चैप्टर में 5 आएगा लेकिन इसका भी यूज नहीं है, लेकिन 3 नंबर से 18 में है तो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, चाहे यहीं पे क्वेश्चन आएगा 80 तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस a and a plus b is minus b by means coefficient of x square minus of coefficient of x square by coefficient of x2, so minus 3 by 1, this is equals to 3 and b cancel, 3a equals to 3 implies a equals to 1, a equals to 1। now product of zeros a minus b, a and a plus b, a c by a minus d by a
और माइनस बी बाई ए मतलब -1/a 1 -1. Now a minus b and a plus b, a square minus b, a square, and into a minus 1. A is 1 minus b square into 1 minus 1. B square is 2 and b equals to plus minus under root 2. प्लस माइनस अंडर रूट 2. और कोई कंडीशन ऐसा है नहीं कि प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों होंगे. मीन्स इफ b इक्वल्स टू अंडर रूट 2, मैंने वैल्यू पूछा तो सिर्फ यही लिखेंगे. a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू -1. यही सॉल्यूशन होगा. Find the condition that the zeros of the polynomial x cube minus px square plus qx minus r में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे एपी. तो एपी चैप्टर नंबर 5 है वैसे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि अगर एपी में है तो दो नंबर के बीच डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मींस नेक्स्ट जो होगा, जो कॉमन डिफरेंस से ज्यादा या कम होगा, लेकिन उतने ही डिफरेंस से फिर दूसरा कम या ज्यादा होगा. मींस दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे. लेकिन 3 नंबर जब मानना होता है तो इस तरह से मानते हैं कि वेरिएबल शॉर्ट हो जाता है एडिशन होने पे. जैसे अगर 3 नंबर मानना हो, अल्फा बीटा 3 नंबर एक ले लें, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से 3 जीरोज मान लिया जाए. तो उसमें क्या होगा कि सम करेंगे तो बीटा कट जाएगा और डिफरेंस भी इससे इसमें कितना बीटा का और इसमें इससे कितना बीटा का, इससे बीटा ज्यादा ये और इससे ये बीटा ज्यादा. तो एपी में मीन्स एपी में जब भी मानना होगा तो हम लोग 3 नंबर्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, या ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी ले लेंगे. इस तरह से यूज करेंगे. तो लेट द जीरोज आर एबीसी यूज नहीं है, ले लेते हैं. ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी. आर पी, ये तीन नंबर लिया ही जाता है. तो चैप्टर नंबर 5 में ये आएगा. तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सम ऑफ जीरोज, एंड सम ऑफ जीरोज इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी बाय 1 इक्वल्स टू पी. दिस इक्वल्स टू पी. और डी बी कैंसिल, 3a इक्वल्स टू p implied a equals to p by 2. A equals to p by 2. But a is also a zeros of the polynomial. A minus b is the zeros of the polynomial. A is the zeros of the polynomial and a plus b is the zeros of polynomial. तो a चूंकि zeros of polynomial है तो a को पुट कर देंगे पूरे polynomial पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. तो हम पुट कर देते हैं और fa निकाल देते हैं. fa and fa equals to a cube minus pa square plus qa minus r equals to 0. Implies p by 3 q minus p by 3 whole square q p by 3 minus r equals to 0. pq by 27, pq by 9 plus pq by 3 minus r, and LCM is 27. plus 27 LCM लेते हैं, फिर वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. pq और 3 pq plus pq और 9 pq 27, तो 3 9 minus 27 r equals to 0. This implies
minus 2pq 9pq minus 27 r equals to 0. माइनस कॉमन ले लेते हैं। This is the required condition. Required condition. If the zeros of the polynomial f x equals to x cube minus square x square plus 39x plus k are in a p, find the value of a. ए पी में और मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। 3 जीरोज करें ए पी में अभी डिस्कस किए हैं, क्या मानेंगे? ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। लेट 3 जीरोज आर a minus b, a and a plus b, a plus b। ये किसमें आएगा? प्रोडक्ट में। लेकिन तीनों के प्रोडक्ट में दोनों अननोन रह जाते हैं, लेकिन सम करें तो एक अननोन इसमें से मिल जाता है। तो पहले सम करेंगे, तो नाउ a minus b, a and a plus b is minus b by a means minus 12 by 12, and this equals to 3a, b be cancel, equals to 12, a equals to 4, k मिल गया। अब k किसमें आ जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट कर दें, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस b a minus b, a and a plus b equals to minus b by a, minus b by a। Now a is 4, a minus b and a plus b, a square minus b square into a equals to minus 3, implies 4 into 4 16 minus b square into 4 minus k। Now find the values of k, and there are 2 unknown। फिर एक रिलेशन यूज करना होगा। एक रिलेशन क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई है। मीन्स अल्फा तो यहाँ ए माइनस बी है इंटू ए इंटू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सी बाई ए 39 by 1, 39 by 1, a 4 plus 4 plus b, 4 square 16 minus b square 39। अब यहाँ से एक कोई अननोन रिप्लेस करना होगा, तो 16 माइनस बी स्क्वायर, ये है 4b, b है ये क्वाड्रेटिक है, b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 16 4b 16 प्लस 4b 16 माइनस बी स्क्वायर 39, 4b कैंसल 48 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 39, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, लेकिन यहाँ तो बी स्क्वायर की जरूरत है, तो अब बी स्क्वायर यहाँ से लेके फिर पुट कर देंगे, तो 16 माइनस 9 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस के, एंड 7 into 4 28, तो k इक्वल्स टू माइनस 28। तो k कितना हो जाएगा? हो सकता है नहीं लिखे वीडियो में, यहाँ से k इक्वल्स टू माइनस 28। If the zeros of the polynomial fx are in a p, find them. Let
0 हो जाए। जब भी एपी में हो तो आप 3 नंबर ये ले लें। इसमें 2 ही अननोन है, 2 इक्वेशन से काम हो जाएगा। एक सम ऑफ जीरोज एंड एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लें। नाउ सम ऑफ जीरोज a minus b, a and a plus b, minus b by a, minus b is minus 15 and a is 2, 15 by 2, and this is equals to 3a, b cancel, 15 by 2, a equals to 5 by 2. Now product of zeros, a minus b, a plus b is minus 30 by 2 equals to minus 15, minus d by a, minus d by a, so d is minus 30 means plus 15. Now a minus b, a square minus b square into a, and a is 5 by 2 minus b square 5 by 2, 15, 5 से कट जाएगा 3, 3 into 2 6, 25 by 4 minus b square equals to 6. Now b square is 25 by 4 minus 6, 1 by 2, so 24, 25 minus 24 by 4, b plus minus 1 by 2. अब b एक बार 1 by 2 है, एक बार प्लस 1 by 2, 1 minus 1 by 2. If a equals to 5 by 2 and b equals to 1 by 2, then zeros are a minus b is 5 by 2 minus 1 by 2, 4 by 2, 2, and a is 5 by 2 and a plus b is 5 by 2 plus half 3. Hence zeros are 2, 5 by 2 and 3. If a equals to 5 by 2 and b equals to minus half, then a minus b 5 by 2 minus plus half, this is 3. A equals to 5 by 2 and a plus b is 5 by 2 minus half, 4 by 2 equals 2. Hence zeros are 3, 5 by 2 and 2. एक increasing AP है, एक decreasing AP है. This is increasing AP, this is decreasing AP. Means number तो सेम ही है, बट AP एक बार इंक्रीजिंग है, एक बार डिक्रीजिंग है, तो हम कह सकते हैं हैंस zeros are 2, 5 by 2 and 3.